Exam dost, success ka host. Sainik na vodaya mein topmost. Hello and welcome everybody to the next session on a journey through states of water. Starts with a quote: "If it does not rain well, even the mighty ocean will be drained." Said by Thirukkural. On a bright summer afternoon, Avi and Thirav enjoyed their shikanji. After looking at the ice in the lemonade, Thirav wondered about the nature of ice and water. He says ice feel hard to touch and we can hold it in our hands, whereas water cannot be held in the same way. So they must be different substances. The girl says no, these are same substances. Avi has a conversation with Thirav. What do you think and why? We can put water in the freezer of a refrigerator and check if it gets converted into ice. Yes, I know water is left in the freezer, it gets converted into ice, but probably something gets added to the ice in the freezer. Do you think Thirav is right? No, he is not right. Now, this is some basic activity. Put an ice cube in a cup, leave it on the table and observe. Ice gets converted into water. What do you conclude from the observation? Does this mean that ice and water are the same substance? Yes, we know ice and water are two forms of same substance. These forms are also called states. These different states of water show many differences in their behavior. Water flows but ice does not. Water splashes but ice does not. So they are basically doing a relative comparison of ice and water, investigating the water's disappearing act. It is a rainy morning. While going to school, Avi and Thirav observe that there are a lot of water puddles in the playground. That evening, when they go to play, they are surprised to observe that some of the water in the puddles had disappeared. Have you ever noticed water in the puddles disappearing? Where does it go? Discuss with your friends. He's saying that I think the water has been absorbed by soil on the playground. What do you think about it? Where else have you seen the water disappearing? Can you think of possible reasons why this happens? You might have observed that after washing the utensils, water left on the surface of the utensils dries up after some time. Does the reason you thought earlier to explain water disappearance apply in this case also? पहले हमने सोचा था कि वाटर को सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन हम देख रहे हैं कि जब हम बर्तन धोते हैं तो बर्तन धोने के बाद भी उसमें जो थोड़ा बहुत पानी रह जाता है वो थोड़ी देर बाद ड्राई अप हो जाता है. So Avi wonders if water has seeped through the surface of the utensil. Thirav thinks that water does not seep through the surface of the utensils. Let's design an activity to investigate. Take a tablespoon of water on a steel plate. Now, how can water be evaporated faster or slower? In the section 8.1 we have learnt about evaporation. Let us explore it more. Observe your surrounding. What are the conditions that affect how fast water evaporates? ये पानी कितनी जल्दी evaporate होता है, क्या क्या conditions हैं? What difference do you see in evaporation on a cold day versus hot day? क्या है, cold day में evaporation कम होगा, hot day में evaporation ज़्यादा होगा. या अपने फ्रेंड्स से अगर आप if you discuss this with your friends, the following words will help you in the discussion. फैन, अगर फैन आप चला दो evaporation ज़्यादा होगा. क्लोथ्स को आप ड्राई करो तो उनको स्प्रेड करना ज़रूरी है, evaporation ज़्यादा होगा. अगर आपको स्वेटिंग ज़्यादा आ रही है
इसका मतलब वो जो दिन है वो ह्यूमिड डे है, और अगर डे ऑलरेडी ह्यूमिड है तो इवेपोरेशन कम होगा। विंडी डे है, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। हॉट डे है, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। रेनी डे है, रेनी डे में ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, तो रेनी डे में इवेपोरेशन कम होगा। और इसके लिए एक उन्होंने छोटा एक्सपेरिमेंट भी दिया है। एक्सपेरिमेंट दे आर सेइंग दैट टेक वाटर इन अ स्मॉल कैप ऑफ बॉटल एंड टेक द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन अ प्लेट। तो एक प्लेट में पानी लेना है और उतना ही पानी एक कप में ले लेना है, सेम वाटर लेना। तो अब हम देखेंगे कि क्योंकि अपने प्लेट में जो पानी लिया है इसका एरिया ज़्यादा है, और एरिया ज़्यादा है तो वो ज़्यादा एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, और ज़्यादा एयर के कांटेक्ट में आ रहा है तो ज़्यादा इवेपोरेशन हो रहा है। सो हियर इन दिस केस जहाँ पर अगर आपने एरिया बढ़ाया तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, एरिया कम होगा इवेपोरेशन कम होगा। नेक्स्ट दे आर सेइंग that what are the other things we can do, what are the other conditions which will affect, design a similar activity that what other conditions can affect the water evaporation। और इसमें आपको उन्होंने बताया कि आप ही ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करिए जिसमें आप ये चेक करिए कि इवेपोरेशन कब ज़्यादा होता है और कब कम होता है। देयर आर सम वी विल ऑल्सो सी। लेट अस प्रोसीड। फिर से एक एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं कि टेक आइडेंटिकल कैप्स ऑफ 2 बॉटल, 2 बॉटल के कैप ले लीजिए। ऐसा हमने बॉटल्स के कैप ले लिए। पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, प्लेस वन ऑफ द कैप इन सनलाइट एंड कीप द अदर इन शेड। एक को सनलाइट में रखिए, एक को शेड में रखिए। ऑब्जर्व द 2 कैप्स ऑफ बॉटल आफ्टर एवरी 15 मिनट्स। रिकॉर्ड द टाइम टेकन फॉर द वाटर टू कम्प्लीटली इवेपोरेट। एंड यू कैन रिपीट द एक्टिविटी ऑन अ विंडी डे और अ रेनी डे। अलग अलग विंडी डे पे, रेनी डे पे आप कर सकते हैं। तो ये देखने को मिलेगा कि जहां पर हमने सन के नीचे सनलाइट जो पानी रखा है, वाटर इवेपोरेट्स फास्टर फ्रॉम द कैप केप्ट इन सनलाइट कंपेयर टू द कैप केप्ट इन द शेड। तो जहां सनलाइट में आपने पानी को रखा है वहां पर जल्दी इवेपोरेशन होगा, और जो कैप आपका शेड में रखा हुआ है वहां पर इवेपोरेशन कम होगा। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ ड्राई फास्टर ऑन अ हॉट एंड सनी डे। डू क्लोथ ड्राई फास्टर और स्लोअर ऑन अ विंडी डे। तो विंडी डे में भी वो जल्दी सूख जाएंगे, सनी डे में भी हमारे कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। सो इट इज़ वंस अगेन अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। विद द इंक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ एयर द इवेपोरेशन ऑफ वाटर विल बी फास्टर। तो ये सारी चीज़ें हमें बता रही हैं कि इवेपोरेशन प्रोसेस अगर ज़्यादा विंडी डे है तो ज़्यादा होगा, सनी डे है तो ज़्यादा होगा। Next, it is also a common observation that clothes dry slowly on a rainy day। अच्छा, रेनी डे में हमारे जो कपड़े होते हैं धीरे धीरे सीखते हैं। आपने देखा होगा 1-2 दिन लग जाते हैं उन्हें सूखने के लिए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑन अ रेनी डे वाटर इवेपोरेट्स स्लोली। बारिश के दिनों में वाटर का जो इवेपोरेशन है स्लो हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसलिए हो जाता है बिकॉज इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज ऑलरेडी हाई। क्योंकि हमें पता है कि बारिश के दिनों में ऑलरेडी एयर में जो ह्यूमिडिटी है, एयर में जो मॉइस्चर है वो ऑलरेडी ज़्यादा है। इसका मतलब उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, दैट इज़ ह्यूमिडिटी। और अगर ऑलरेडी एयर में बहुत ज़्यादा पानी है तो कपड़ों में से फिर जो सूखने वाला पानी है वो उतना ज़्यादा इवेपोरेशन नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में बहुत सारा ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है। तो रेनी डे में जो हमारा इवेपोरेशन प्रोसेस है वो कम हो जाएगा, वाटर विल इवेपोरेट स्लोली। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। इसमें या तो ट्रू फॉल्स बेसिस क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज मोर ऑन रेनी डेज एंड हेंस रेनी डेज आर मोर ह्यूमिड। ह्यूमिडिटी हमने देखा, दैट्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। If you want to dry your clothes on a rainy day, how can you make it faster? हम फैन का यूज़ कर सकते हैं, है ना, या फिर हम घर में कुछ हीटिंग इफेक्ट ला सकते हैं। Now moving further to the cooling effect. Avi's mother purchased a new matka earthen pot to replace the stainless steel pot for storing drinking water. Upon returning from school, Avi notices the earthen pot and drinks water from it. Avi expresses surprises and asks, "Why is the water in the earthen pot so cold? I never observed water getting cold in the stainless steel pot."
व्हाट डू यू थिंक इज द रीज़न? अभी ये बता रहे हैं कि मटका जो पानी है वो ठंडा कैसे होता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मटके में क्या होता है कि मटके का जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी जो मिट्टी से जो उसे बना हुआ है, उसमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, एंड उस छोटे छोटे होल्स में से द वाटर सीप्स थ्रू द सरफेस ऑफ अर्थन पॉट एंड इवेपोरेट्स। आप देखेंगे मटके को अगर आप छुएंगे तो आपको वो ठंडा लगेगा। ठंडा क्यों है वो? क्योंकि उस मटके के सरफेस में से पानी इवेपोरेट हो रहा है, विच इम्पार्ट्स अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द, और जिसकी वजह से अंदर का, मटके के अंदर का पानी ठंडा हो रहा है। What are the other example of this cooling effect? Sprinkling water on the floor or the roof during summer to cool it. गर्मियों के दिन में हम अपनी छत पर ठंडा पानी छिड़कते हैं, या फर्श पर, फ्लोर पर हम ठंडा पानी छिड़कते हैं, जिससे भी ये कूलिंग इफेक्ट हमें मिलता है। अच्छा, एक और इसका एग्जाम्पल देखिए, जब हम बाहर से आते हैं, हमें गर्मी लगती है, पसीना निकल रहा होता है, तो हम फैन चलाकर बैठते हैं। वाई वी फील कूलर इफ वी सीट अंडर अ फैन? बिकॉज द विंड, जो फैन की जो हवा है, दैट हेल्प्स द स्वेट टू इवेपोरेट एंड कूल्स अस। तो हमारे बॉडी से जो पसीना निकलने का जो प्रोसेस होता है, जो स्वेटिंग का जो प्रोसेस होता है, इट इज़ नथिंग बट द कूलिंग इफेक्ट ऑफ आवर बॉडी। पसीना निकलना इसलिए इंपॉर्टेंट है, उससे हमारी बॉडी कूल होती है। दैट इज द कूलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर. Let us perform activity to observe the cooling effect by making simple and electricity free model of pot in pot cooler. तो यहाँ पर इन्होंने एक pot in pot cooler बनाया है. ये नेचुरल फ्रिज की तरह काम करेगा. टेक 2 earthen pot of different size, fill the bottom of larger pot with layer of sand, place the smaller pot into the center of larger one, fill the gap between the pot with more sand and pour water in the sand area. What they are saying is this: you make a structure like this. अपने क्या करना है, एक पॉट अंदर, बड़े पॉट के अंदर जो बाहर वाला आउटर पॉट है, इसमें आपको सैंड डालना है. ये बीच में सैंड आपने भरा हुआ है और इसके अंदर फिर से एक पॉट रख देना है. और अब आपको ये जो सैंड आपने भरी है, इसमें पानी डाल देना है ठंडा करने के लिए. और अब जो अंदर वाला जो पॉट है, उसमें आप अपने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स रखो. तो कूलिंग इफेक्ट की वजह से यहाँ पर कूलिंग इफेक्ट होगा, क्योंकि सैंड क्या है, ठंडी हो जाएगी. तो एक कूलिंग इफेक्ट होगा और इस कूलिंग इफेक्ट की वजह से हमारे जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं, ये फ्रेश रहेंगे. सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ कूलिंग इफेक्ट. 4-5 hours of the mini pot cooler to cool down. The time range can be influenced by many conditions. Discuss and how it creates a cooling effect. Keep some vegetable and fruit in it and observe for a week on a daily basis to check for the freshness of the vegetable and fruits kept inside the cooler. You will have to add water regularly to keep the sand moist. सो आपको ये देखना है कि कितने दिन तक ये हमारे वेजिटेबल एंड फ्रूट्स जो हैं वो फ्रेश रहेंगे. व्हाट आर द कंडीशंस विच कैन अफेक्ट द नंबर ऑफ दीज डेज. हम इसको और कैसे ठंडा रख सकते हैं. तो ये बेसिकली एक हमारा होम मेड फ्रीजर हो गया, होममेड फ्रिज हो गया. बड़ा वाला पॉट लिया, उसमें सैंड डाल दिया, फिर पानी डाल दिया, फिर उसके अंदर एक और पॉट रख दिया, और अब ये पॉट ठंडा रहेगा. इसमें आप अपने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स रखो, वो काफ़ी दिन तक फ्रेश रहता है. Now you may all be fair, अभी ने देखी होगी. In summers the सुराही is used to keep the water cold. सुराही भी इसी अप्रोच पे काम करती है, पानी ठंडा रखती है. Next is how do clouds give us rain. Condensation plays a significant role in the process of bringing evaporated water back to the earth's surface. कंडेंसेशन जो प्रोसेस है, कंडेंसेशन मतलब वेपर्स का, वाटर वेपर्स का वाटर में कन्वर्ट हो जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि ये अर्थ के इवेपोरेटेड वाटर को अर्थ पर वापस लाता है. कैसे? रेन के फॉर्म में. हाउ डज दिस हैपन? व्हेन द एयर मूव्स हायर अबव द अर्थ सरफेस इट बिकम्स कूलर एंड कूलर. जब एयर अर्थ के हायर सरफेस पर पहुंचती है, अर्थ के ऊपर जब पहुंचती है और ऊपर ऊपर जब जाती है, तो वो ठंडी होने लगती है. क्यों? क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर क्या है, हमारा ठंडा है. जैसे जैसे आप हाइट पर जाएंगे, ठंडा होता जाएगा, तो एयर भी हमारी क्या होगी, ठंडी होती जाएगी. At certain height, the air gets so cool that the water vapor in it turn into droplets, which are generally formed around dust particles. These small droplets float in the air and form clouds. Many droplets join together to form bigger drops of water. Some drops get so heavy that they start falling. These falling water drops are what we call rain. तो पहले क्या होता है कि हमारा जो पानी है वो ऊपर की तरफ जाएगा. जब वो एक हाइट पर पहुंचेगा तो वो ठंडा होने लगेगा.
ठंडा होते होते हमने देखा कि अगर वो बहुत ठंडा हो जाएगा तो वाटर वेपर से वाटर ड्रॉप्स में बन जाएगा, वाटर ड्रॉप्स आपस में ज्वाइन होकर क्लाउड्स बन जाएंगे, और जब क्लाउड्स बहुत हैवी हो जाएंगे तो रेन के फॉर्म में ये वाटर नीचे आ जाएगा और इसी से हमें रेन मिलता है। Now why does the air containing, यहाँ बॉक्स में, why does the air containing water vapor go up in the atmosphere? The thin layer of air, atmosphere को उन्होंने बताया, it is the thin layer of air that surrounds the earth. Now as we know, the gas balloons containing lighter gas go up in the air. Similarly water vapor is lighter than air, so it will rise. तो वाटर वेपर जो होते हैं वो एयर से हल्के होते हैं, इसीलिए वो ऊपर ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हैं. That is why it will go up. Under special conditions, it might also fall as hail or snow. जब टेम्परेचर बहुत कम होगा तो वो हेल मतलब बर्फ के छोटे छोटे गोले बन जाएंगे या स्नो बन जाएंगे. Avi enjoys the rain and creates a poem. You can complete the poem and present it in your class. Not important for our exam. Next, they are doing one more group activity. Take a empty discarded 1 liter plastic bottle. Pour about 1 cup of water in it. Close the lid tightly. Now quickly squeeze and release the bottle continuously for 2-3 minutes. Observe the space above the water in the bottle. Repeat the same activity after adding a small burnt piece of newspaper into the water. What do you observe? In this case, you will observe some haziness or cloud above the water in the bottle. The burnt newspaper provides very small invisible dust particle around which water vapor condenses to form cloud. तो वो बता रहे हैं कि एक आप बड़ा एक बॉटल ले लीजिए, उसमें आधा आप पानी भर दीजिए और उसके बाद आप उसे स्क्वीज़ करिए और रिलीज़ करिए, और उसके बाद आप उसमें एक जला के पेपर डाल दीजिए और फिर से उसे हिलाइए, तो आप देखेंगे उसमें क्लाउड्स का फॉर्मेशन होने लगेगा. दिस इज जस्ट अ बेसिक एग्जांपल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स. एनीवेज, now let us understand the process of raining. Using arrow shown and the words given in the box to show where the water is stored, how the water changes its state and where it moves. अभी सबसे पहले आप यहाँ पर नीचे देखो ओशन है, ओशन से पानी जो है इवेपोरेट हो रहा है, इवेपोरेट होकर वो ऊपर की तरफ जा रहा है. इवेपोरेट होकर जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर जाकर वो क्या बन रहा है, बन रहा है, वो कंडेंसेशन उसका हो रहा है, वो क्लाउड्स बन रहा है और क्लाउड्स बन के फिर से वापस वो रेन के फॉर्म में या हेल के फॉर्म में या स्नो के फॉर्म में नीचे आ रहा है. द वाटर फ्रॉम द ओशन एंड द अर्थ इनटू दैट हेल और स्नो, ultimately back to the oceans. This circulation of water is called water cycle. Only a small portion of water available on the earth is fit for use by plants, animals and humans. Most of the water is in the oceans and it cannot be used directly. We use water for drinking and also for many other activities. The number of people using water is increasing with the rise in population. The increasing demand for water causes its shortage in many parts of the world. तो यहाँ पर हमें ऐसा बता रहे हैं कि वाटर साइकिल के थ्रू ओशंस में आ जाता है, लेकिन ओशंस का जो वाटर होता है हमें पता है हम उसे यूज़ डायरेक्टली नहीं कर सकते. ड्रिंकिंग वाटर जो होता है हमें वो रेन वाटर के थ्रू मिलता है. और अभी आजकल क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ जाने की वजह से वाटर की डिमांड भी बढ़ रही है और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं आजकल वाटर का शॉर्टेज भी हो रहा है. Hence it is very important to use water wisely and avoid wasting it. इसीलिए आप हमने हर जगह ये चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, हर कोई बोलता है कि पानी को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमें उसको वाइजली यूज़ करना चाहिए. लेट अस कीप आवर वाटर बॉडीज़ फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन. हमें जितने भी हमारे लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, उसमें पॉल्यूशन नहीं फैलानी चाहिए क्योंकि वो हमारी एक्वेटिक लाइफ को अफेक्ट करती है. You will learn more about water and its conservation in the chapter Nature's Treasure. आपने अब एक और सेशन हम करेंगे इस पे जिसमें हम वाटर के कंजर्वेशन के बारे में और उसके पॉल्यूशन के बारे में हम बातें करेंगे. ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से हमें एग्जाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा. प्रॉपरली इसको रिवाइज करिए, वीडियो को 3-4 बार देखिए.